Welcome to my channel Padhai Galli. Today we are going to start our new chapter, that is pollution. So pollution means introduction of harmful or toxic material into the environment that causes adverse impact in the environment. Introduction of harmful substance or toxic substance. जब किसी भी एनवायरनमेंट में कुछ हार्मफुल सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ गैसेस या फिर किसी भी केमिकल्स के फॉर्म में जब इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उसे पॉल्यूट करना शुरू कर देते हैं. तो द सब्सटेंस दैट आर कॉजिंग द हार्मफुल इफेक्ट आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स. So in this chapter we are going to study the two branches of pollution. One is air pollution and second is water pollution. One is air pollution, second is water pollution. So again, if I want to define this, air pollution means introduction of harmful and toxic gases into the environment that makes air unfit for use या unfit for consuming. Introduction of harmful or toxic gases into the environment that makes air unfit for our breathing is called air pollution. So basically, how it is making unfit? The composition of air means air जो है वो किस किस गैसेस से मिलकर के बनी हुई है. तो बेसिकली इसमें है नाइट्रोजन गैस जिसका अराउंड 78%, ऑक्सीजन गैस अराउंड 21%, देन आर्गॉन अराउंड 0.9%, then CO2 0.03%. After that many other gases are also there. So those who are less than 1, almost they are coming under the category of trace gases. Trace gases. Many other are there. Water vapor is there, helium gas is there, hydrogen gas is there. So their composition is less than 1%. बहुत ही कम है amount में. That's why they are coming under the category of trace gases. When this composition disturbs, then it is causing air pollution. So the substances that are causing air pollution are called pollutants. So there are many sources of air pollution. The sources are sources of air pollution. The sources are, first is carbon monoxide. Carbon monoxide. Carbon monoxide. This is CO. ये जो है ये इनकम्प्लीट कंबशन से फॉर्म होती है. इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स जैसे अगर गाड़ी में जो डीजल पेट्रोल डले हुए उनके इनकम्प्लीट कंबशन से, वुड्स के जलने से, कोल के जलने से ये गैस फॉर्म होती है. अब ये हार्मफुल क्यों है? दिस गैस इज गोइंग टू गेट मिक्स इन अवर ब्लड व्हेन वी ब्रीथ. जब हम ब्रीथ करते हैं तो ये गैस हम इनहेल कर लेते हैं और इनहेल करने के टाइम पे ये जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाती है और ये ब्लड के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, सेल के इंटरनल पार्ट्स में पहुंच करके बहुत डिफरेंट टाइप के डिसीजेस, अनकॉन्शियसनेस, इवन लाइक टू डेथ, वहां तक भी ये कॉज कर सकती है. तो ये है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. सेकेंडली, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. Sulfur dioxide and nitrogen dioxide, they are formed by burning of fossil fuels. Burning of fossil fuels. Also released from factories. Released from factories.
हाउ दे कॉजेस पोल्यूशन, ये कैसे पोल्यूशन कॉज करती है? बेसिकली दीज गैसेस व्हेन रिलीज फ्रॉम द व्हीकल्स और फ्रॉम द फैक्ट्रीज, they are reacting with the water vapor present in the atmosphere. They are reacting with the water vapor present in the atmosphere and forming, they form sulfuric acid and nitric acid. They form sulfuric acid and nitric acid. When this acid is प्रेसिपिटेटिंग, और जब ये एसिड पानी के साथ मिल करके अर्थ पे गिरता है, मीन्स इन द फॉर्म ऑफ रेन, दैट रेन इज कॉल्ड एसिड रेन. सो दे कॉजेस एसिड रेन. दे कॉजेस एसिड रेन. दे कॉजेस एसिड रेन. Acid rain leads to many other diseases like skin problems and many other problems are there. जब वो पानी गिरेगा तो वो किसी भी कार्बन लाइमस्टोन वाली बिल्डिंग्स को, मार्बल वाली बिल्डिंग को कोरोड कर सकता है. वो अगर पानी में जाकर के गिरेगा तो पानी को एसिडिक बना सकता है. सॉइल पे जाके गिरेगा तो सॉइल को एसिडिक बनाएगा और फार्मिंग को भी अफेक्ट कर सकता है. सो दीज आर द वेरियस हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. अब अगर तीसरी गैस की बात करूं तो तीसरी गैस है हमारी ओजोन. तीसरी गैस है हमारी ओजोन. ओजोन मतलब ग्राउंड लेवल ओजोन. ग्राउंड लेवल ओजोन. देखिए एक ओजोन है जो स्ट्रेटोस्फियर में, जो अर्थ सरफेस की प्रोटेक्शन करती है बाय अब्सॉर्बिंग हार्मफुल यूवी रेज. ये जो ओजोन है ये ग्राउंड लेवल पर है और ये बहुत ज्यादा रिस्की है. ये फॉर्म होती है व्हेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन reacts with organic compounds. Reacts with organic compounds. Organic compounds. Okay, so this is also causing various other problems in our ecosystem. ये टेम्परेचर बढ़ा सकती है, वेजिटेशन को प्रॉब्लम कर सकती है. तो इसका हार्मफुल इफेक्ट हम काउंट कर सकते हैं इन इकोसिस्टम, इन वेजिटेशन. ये बहुत ज्यादा डेंजरस है. फोर्थ आई कैन से दैट क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फ्रियॉन्स. क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फ्रियॉन्स ये बेसिकली जो गैस है ये रेफ्रिजरेटर्स सेकेंडली एयर कंडीशनर्स, और एरोजॉल्स. एरोजॉल मतलब होता है स्मोक या फिर ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट. जो वहां से स्मोक निकलता है उसे एरोजॉल की कैटेगरी में काउंट करते हैं. द सोर्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फ्रियॉन इज दिस थ्री. दीज थ्री गैसेस मीन्स दिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन व्हेन इट इज रिलीज फ्रॉम दिस इट इज गोइंग टू डायरेक्टली अफेक्ट द ओजोन लेयर. ये सबसे बड़ा जो इसका कॉज है वो है ओजोन लेयर डिप्लीशन. ये क्यों हार्मफुल है? बिकॉज इट इज कॉजिंग द डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर. और सबसे ज्यादा डिप्लीशन कहाँ है? अंटार्कटिका, साउथ पोल, क्योंकि वहां पर पोलार स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स वहां पर प्रेजेंट है, जिसके कारण से सबसे ज्यादा डिप्लीशन ओजोन लेयर का कहाँ हो रहा है? वहां. इसीलिए ओजोन होल सबसे पहले वहीं देखी गई. सो दिस गैस इज रिलीज एंड दिस इज कॉजिंग डिप्लीशन इन ओजोन लेयर. ओजोन लेयर में डिप्लीशन के कारण जो सन की हार्मफुल रेज है वो अर्थ सरफेस तक पहुंच रही है और पहुंचने के कारण बहुत सी डिसीजेस कॉज कर रही हैं, जैसे स्किन कैंसर, फिर स्किन में और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस कॉज कर रही है, फिर वेजिटेशन को भी हार्म कर रही है क्योंकि बहुत ज्यादा हार्मफुल जो लाइट है जो बहुत ज्यादा हीट एनर्जी के साथ आ रही है, ये हमारे सर्वाइवल को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है. नाउ इसके बाद जो फिफ्थ सोर्स है वो है लेड. जो फिफ्थ सोर्स है वो है लेड. जो लेड है ये या तो फिर माइनिंग से, या तो ओर्स से, या तो लेड एसिड बैटरी से, लेड एसिड बैटरी से, या फिर ये जो है लेड
कंटेन्ड पेट्रोल से, लेड एडेड पेट्रोल या लेड कंटेन्ड पेट्रोल से रिलीज होती है, और ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट कॉज करती है, क्योंकि ये जब हम इनहेल कर लेते हैं तो ये हमारे ब्लड में जाके मिक्स हो जाती है और ये बोन्स में जाकर एक्यूमुलेट हो जाती है, बोन्स में जाकर के एक्यूमुलेट हो जाती है, एंड इट इज कॉजिंग द प्रॉब्लम इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, and also causing the diseases like memory loss or the problem of learning something. So these type of diseases are caused by the accumulation of lead. So ये जो है ये various sources हैं, और sources के साथ मैंने इनके harmful effect बता दिए। एक और harmful effect है जो इनके कारण cause होता है, that is global warming. That is global warming. मैंने acid rain बताई। एक और हार्मफुल इफेक्ट जो है वो है ग्लोबल वार्मिंग। तो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, अगर उसमें मैं काउंट करूं तो मैंने जो चीज आपको डिसाइड करके बताई वो सब चीजें, जैसे डिसीजेस में लंग कैंसर, स्किन कैंसर, asthma and various other diseases. Secondly, it causes acid rain. It causes acid rain because of SO2 and NO2. Thirdly, it causes global warming. Global warming. Fourth है ozone layer depletion because of freons. Ozone layer depletion because of freon. So global warming means unnatural warming of earth, unnatural increase in temperature of earth, increase in temperature of earth, unnatural increase in temperature of earth is called global warming. Why it is causing? ये हो क्यों रही है? This is because of increase in greenhouse gases. Greenhouse gases. This is because of increase in greenhouse gases. जब greenhouse gases बढ़ रही हैं तो ये अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा रही है। अब ग्रीन हाउस गैसेस होती क्या क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, एक्सेट्रा. These are greenhouse gases. The main function of these greenhouse gases is to trap the sunlight that is coming to the earth. ये जो सन की लाइट अर्थ पे आती है, देखिए मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट होकर के बाहर चली जाती है, बट कुछ अमाउंट ऑफ जो सनलाइट एंटर करती है ये इसे ट्रैप करके रख लेती है. लाइक दैट ग्रीन हाउस, लाइक ग्रीन हाउसेस आर मेड इन एग्रीकल्चरल फील्ड. बेसिकली विंटर के लिए बना करके रखा जाता है उन्हें, कि जब विंटर में प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनलाइट नहीं आती है तो ग्रीन हाउसेस को प्लास्टिक या फिर कांच का बनाया जाता है, जिसमें जैसे लाइट फॉल करती है अंदर के टेम्परेचर को पूरा का पूरा हीट प्रोवाइड हो सके और हीट उसके अंदर से बाहर ना जा सके. ये ट्रैप करके रख लेती है. तो वैसे ये गैसेस क्या करती हैं, अर्थ के अंदर जो सनलाइट एंटर करती है उन्हें ट्रैप करके रख लेती है. Nowadays what is happening, because of that deforestation the amount of carbon dioxide is increasing continuously in enormous amount, and because of air pollution SO2 is also increasing in enormous amount. So they are absorbing the sunlight in much more quantity. अब ये ज्यादा सनलाइट को absorb कर रही है. ज्यादा सनलाइट को absorb करने के कारण जो अर्थ के अंदर का टेम्परेचर है वो अब धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहा है, एंड दिस अननेचुरल इंक्रीज इन द टेम्परेचर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स या फिर ग्लेशियर्स और ग्लेशियर्स. ओके, सेकेंडली सबमर्जिंग ऑफ आइलैंड्स. जब पानी का लेवल बढ़ेगा ग्लोबल वार्मिंग के कारण तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो आइलैंड्स भी जा सकते हैं पानी के अंदर.
कोस्टल लैंड्स, जो कोस्टल लैंड्स वहां प्रेजेंट रहेंगे उनको भी ये इफेक्ट करेगा। कोरल रीफ को ये डैमेज करेगा, ये सबमर्ज कर लेगा। सबमर्जिंग ऑफ कोरल रीफ्स। सो these are the various causes the effect of global warming। पानी का लेवल बढ़ते जाएगा, जितने कोस्टल एरिया है सब पानी के अंदर सबमर्ज हो जाएंगे, सिंक हो जाएंगे। जितने आइलैंड है वो सिंक हो जाएंगे, जितने ग्लेशियर है उनका पानी धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, पिघलते जा रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सर्फेस। So these are the various harmful effects of air pollution. Now, how can we prevent air pollution? देखिए चैप्टर को एक तरीके से पढ़ा जाता है, पहले एयर, फिर एयर में पॉल्यूशन के कारण द सोर्सेस, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स, नाउ हाउ कैन वी प्रिवेंट इट, हाउ कैन वी प्रिवेंट इट, प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन, हाउ कैन वी प्रिवेंट इट। अब हो तो रहा है, अब इसे बचा कैसे सकते हैं, तो देखिए सबसे बेसिक टेक्निक है प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। जितनी ट्रीज प्लांट करेंगे उतना ही CO2 का अमाउंट कम होगा, उतनी ही ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, उतनी ही एयर पॉल्यूशन कम हो जाएगी। सेकेंड, रेगुलर चेकअप ऑफ व्हीकल्स, रेगुलर चेकअप ऑफ व्हीकल्स कि ज्यादा अमाउंट में स्मोक ना निकले, रेगुलर चेकअप ऑफ व्हीकल्स। थर्ड थिंग, यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर, यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर। देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर या 2 नंबर में कभी कभी आता है। What is catalytic converter? Catalytic converter is a type of system that is added in the engine। कार के इंजन्स के पास लगा दिया जाता है कि जब वहां से स्मोक निकले तो जो हार्मफुल कार्बन मोनोऑक्साइड है और नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसे ये किसमें कन्वर्ट कर देता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड में, नाइट्रोजन में एंड वाटर में, ये इसमें कन्वर्ट कर देता है। फोर्थ है यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अपनी सेल्फ की व्हीकल्स का ज्यादा यूज मत करिए, बसेस चलती हैं उनका यूज करिए। इससे क्या है, बहुत ज्यादा अमाउंट में स्मोक, फ्यूल, ये सब चीजें नहीं जलेंगी और स्मोक ज्यादा अमाउंट में नहीं निकलेगा। फिफ्थ इज यूज ऑफ CNG और LPG, CNG और LPG, as they are considered as ideal fuel, as they are considered as ideal fuel। What is the full form of CNG? CNG stands for compressed natural gas, compressed natural gas। LPG, liquefied petroleum gas, liquefied petroleum gas, liquefied petroleum gas। So these are the proper techniques which we should use for prevention of air pollution। So this is the first portion of our chapter, this is part 1। We are ending our chapter here only, means जो आज का टॉपिक है वो यहीं तक है। In next topic we will move towards the portion of water pollution। So thank you।